hello all of you, welcome back. As yesterday we have started with for loop. Okay, so we have discussed about basic examples of for loop and how why it is called loop, why it is called conditional statement, and some basic examples for loop. Okay, so हमने देख लिया. The next thing we will study about is some more about some range function. I think कल का session end करते करते I have described you something about range function that it includes two what we can say three variables, or we can say three terms like that is start, stop, and where to start, where to stop, or we can say where to end. And the third one I said increment or decrement, or we can call it as a step. Okay, so we have discussed some just small about range function, but in today's lecture we will deal with more on how can we use that range function to make our own life easy. And we will also study about uh, the for loop without range function. Yeah, that can also be possible. वो भी possible है. And like if like that things are possible, like we can assume that chai can also be made without sugar. So yeah, for loop can also be possible without the range function. The chai का example is इसलिए लिया कि like in chai we imposed multiple ingredients. Okay, like let me open this thing. Yeah, good. Good. Like in a tea, we can or we use multiple ingredients. Okay, such like that in for loop we use multiple ingredients. What are the ingredients? The first that is start, stop, and we can say increment, decrement, or the step parameter. So out of these three parameters, two parameters are optional. Okay, which are the first one start and last one increment, decrement, or the step. ओके, ठीक है. हम अभी 2-3 एग्जांपल देखेंगे एंड बाय द टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली. इट इज वेरी इजी. सो लेट्स सी. सपोज फॉर फर्स्ट वी हैव टू प्रिंट नंबर. यहाँ पे मैंने कोड लिखा है फॉर x इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट x. सो दोज हु हैव सीन माय प्रीवियस वीडियो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे हो क्या रहा है. यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए इफ आई रन दिस कोड. ओके, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, लेट्स डू दिस. या सी, 0 से 9, 0 टू 9 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं. अभी मुझे इस कोड को ना थोड़ा और क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करना है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम तुम एक क्लब में जा रहे हो और बाहर बाउंसर खड़ा है एंड बाउंसर इज सेइंग आई आई विल ओनली एंटर टू दोज मेंबर्स हु हैज और लास्ट डिजिट और हू हैज ऑड नंबर ऑन देयर व्हाट वी कैन से रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑन देयर पासेस. ठीक है, मैं सिर्फ उनको एंट्री दूंगा क्लब में. ठीक है, अभी वैलेंटाइन का वीक चल रहा है तो क्लब में सिर्फ मैं उनको एंट्री दूंगा जिनके पास ऑड नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी उनके पासेस पे रहता है. सो बाउंसर ने ये बोला. सो अभी मुझे वैसे लोगों की लिस्ट निकालनी है. सो मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी इफ की. मैंने तो पहले फॉर लूप यूज किया. x will take value starting from 1 up to 11, not up to 11. It will take 1 less than end value. That is end value is not to be considered. Okay, so start 1 से होगा but end 10 पे होगा, मतलब 10 included होगा, right? 11 excluded होगा. That is the property of range function. Okay. So if x modulo of 2 is not equals to 0, means odd digits, whatever the odd digits are there between 1 to 10, that will get printed. सिर्फ odd लोगों को मैंने एंट्री दे दी क्लब में से 1 3 5 7 है. ठीक हो गया. अब देखो, यही चीज मैं विदाउट यूजिंग दिस इफ स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन. हाउ? अब प्रीवियसली यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअली यहाँ पे भी हमने 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं, बस अपने को दिखाई नहीं दे रहा है. इन 3 पैरामीटर में से जो स्टॉप पैरामीटर होता है, जहाँ पे अपने को रुकना है, यहाँ पे 10 पे रुकना है, तो 9 तक प्रिंट होगा. वो मैंडेटरी है. वो रेंज फंक्शन यूज़ कर रहा है तो स्टॉप पैरामीटर शुड बी देयर. एंड बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पैरामीटर and a step parameter, a start parameter by default is taken as 0 and the step parameter by default is taken as 1. ठीक है, कैसे जैसे यहाँ पे हमने हमने नहीं बोला स्टार्ट कहाँ से करना है, वो स्टार्ट -2 से भी कर सकता था, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने स्टार्ट 0 से किया. ठीक है, अब वो इंक्रीमेंट कितने का करना है, स्टेप फंक्शन कितने का रखना है, स्टेप पैरामीटर कितने का रखना है, वी डू नॉट मेंशन दैट. ओके, तो बाय डिफॉल्ट उसने 1 से इंक्रीमेंट किया. ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. बट अगर मुझे ऑड ही डिजिट प्रिंट करना है तो मैं विदाउट इफ भी कर सकता हूँ. हाउ? लेट्स सी. लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 टू 11, चीज एक ही है, बट विदाउट इफ यूजिंग इफ मैंने क्या किया, उसको बोला 1 से स्टार्ट कर तू. बट इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट करने से अलावा तू एक काम कर, 1 लिख, फिर इंक्रीमेंट कर बाय 2, दैट इज 3.
ऑब्वियसली वो ऑड डिजिट्स ही प्रिंट होंगे। ओके, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 135 देखो आउटपुट सेम है, बट आई हैव डन दिस विदाउट यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ओके, सो सेव्ड माय मेमोरी। या हाँ, सो मैंने बोला था देखो ये वाला कोड और ये वाला कोड सेम है। या सेम है, बस यहाँ पे मैंने 0 और 1 मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने 0 और 1 मेंशन किया है। ठीक, आउटपुट भी सेम है। या दैट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द थिंग। ओके, अब मेरे को कुछ उल्टा सूझा, मैं बोल रहा हूँ मेरे को रिवर्स नंबर प्रिंट कराने हैं। स्टार्टिंग क्या है मेरे को रिवर्स नंबर चाहिए, मतलब 9 से चाहिए और 0 तक प्रिंट कराने हैं। अब 0 तक प्रिंट कराने हैं तो मैं 0 तो स्टॉप वैल्यू नहीं लिख सकता। मुझे उससे बाद क्या आता है, उसके बाद -1 आता है अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊँ तो। तो मेरी स्टॉप वैल्यू मैंने -1 रखी, ठीक है सर, -1 थी। अभी मैं डिक्रीमेंट दे रहा हूँ -2 का। यहाँ पे मैं रिवर्स में ऑड डिजिट्स प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं समझो एक बार मैं -2 लेके प्रिंट करता हूँ। देखो, रिवर्स में मैंने ऑड डिजिट्स प्रिंट की। अगर मैंने ये वाला दिया ही नहीं होता, तो भी ये रिवर्स में पूरा 9 से लेके वेट, 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 there's something glitch here. Let me give one time here. Yeah, perfect. Yeah, I think I should use another cell. There is some problem with this cell, I think. For x in range, yeah, see this. हाँ, तो रिवर्स में उसे प्रिंट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अप टू 0, मतलब 0 प्रिंट नहीं होगा। अगर ठीक है, मैं 0 की जगह यहाँ पे -1 डालता हूँ, मैं ये एरो हटा ही देता हूँ, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं 10 टू -1 जाता हूँ एंड डिक्रीमेंट करता हूँ -1 का। या परफेक्ट। हाँ, तो अब आप बोल रहे होंगे कि उसने जब मैंने -1 हटा दिया, मैंने जो ऑप्शनल वैल्यू थी यहाँ पे वो हटा दी, तब वो बंदा प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? या सेम क्वेश्चन अराइजेस माय माइंड एंड समथिंग क्लिक मी नाउ। वो कह रहा है यहाँ पे पता है, मैंने ठीक है, मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी उसको, ठीक है? स्टॉप वैल्यू वो कंसीडर करेगा -1, ठीक है? बट अभी मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसका +1 है, ठीक है? अभी वो बंदा कन्फ्यूज़ हो गया है रेंज फंक्शन की भाई इंक्रीमेंट, मुझे तो इंक्रीमेंट +1 करना है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 10 है, बट मुझे तो -1 तक जाना है। स्टॉप वैल्यू वो है, तो 10 + 1 करेगा 11, वो तो अलाउड ही नहीं है, तो वो नथिंग इज़ गेटिंग प्रिंटेड। ओके, सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस थिंग, ठीक है? हाँ। अभी आई हैव इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दैट हम कुछ रेंज फंक्शन के साथ डील करेंगे एंड लेटर देन वी विल ट्राई सम मैजिक थिंग लाइक हाउ वी कैन एग्जीक्यूट फॉर लूप विदाउट रेंज फंक्शन। ठीक है, कैसे करते हैं? तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक वेरिएबल लिया कंट्री, उसमें इंडिया स्ट्रिंग सेव किया। अभी हो क्या रहा है ना इधर, अ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर ईच, ठीक है? ये जो चीज़ हो रही है ना इधर विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन, इसे बोलते हैं फॉर ईच। तो वो क्या रहा है? फॉर ईच लेटर इन, और वी कैन से फॉर ईच कैरेक्टर इन वेरिएबल कंट्री, ठीक है? मतलब हो क्या रहा है, लेटर जो वेरिएबल है, वो कंट्री में से ईच कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है? मीन्स a later variable is containing each character starting from I one by one, okay, throughout the for loop, ठीक है? For example, first value of country, that is I, will be stored in variable later for the first time, where the loop will be run for first time, and after that later will store n, after that later will store d, after that later will store I। so ऐसे करके देखो पूरा for loop रन हो जाएगा। सी, I N D I A, गुड। अब ये हो क्या रहा है, अब ये चीज और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो सेम चीज है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्री नाम के स्ट्रिंग में से इंडेक्स वैल्यूज निकाल रहा हूँ, लाइक कंट्री ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, 0 पे क्या है चीज है, कंट्री वेरिएबल में 0 इंडेक्स पे आई लेटर है। तो सेम चीज वो यहाँ पे प्रिंट करेगा जो यहाँ पे किया है, आई एन डी आई, आई एन डी आई। 0 इंडेक्स पे कंट्री स्ट्रिंग के आई है, फिर 1th इंडेक्स पे एन है, सेकंड इंडेक्स पे डी है, थर्ड इंडेक्स पे आई है, फोर्थ इंडेक्स पे ए है। तो लाइक दैट हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि लेटर भी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर रहा है, लाइक फॉर ईच लेटर इन कंट्री, मतलब ईच कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर जा रहा है वो कंट्री वेरिएबल में के, मतलब सबसे पहले लेटर कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर स्टोर करेगा दैट इज आई, उसके बाद एन, उसके बाद डी, उसके बाद ए,
ठीक है, और फॉर दैट वेरिएबल वो रन करेगा फॉर लूप। ओके, सो वही एक्सप्लेन करना था इस वीडियो में। थैंक यू, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।